Hello my dear students, myself Karthik K. Patel, lecturer Electrical Engineering Department VPMP Polytechnic. As per the GTU syllabus of the 5th semester, I will take the one of the subject electrical traction and control. In this subject, we have studied the different types of the traction system, different types of the electrical locomotives, different types of the coaches and other machineries. Now we have start the unit number 1, traction system. In the unit number 1, I will bifurcate the content in the 4 parts. In the part 1, what is the traction, brief history of the traction, future trends of the traction in India, that means the Indian Railway. Then after bifurcate content number B, the ideal requirement of the traction system, types of the traction system, advantages and disadvantages of the basic traction system. Now the content C, types of the electrical traction system. In content C, we have studied only the electrical traction system. Then after the track of electrification, advantages and disadvantages. Now the content D, high speed traction system, magnetic leviation principles. In the content E, the outcomes of the unit, summarize of the unit, assignment of the unit. Now we have start the content A. Before that, each metal has a certain power of setting the electrical fluid in a motion. The voltage says that. Now we have start the point number 1. What is the traction? This is the most IMP question for the 2 marks in a GTU examination. What is a traction? The traction means a traction system is that which involves the propulsion of wheels on a vehicle on a track. Simply that कि हम इसे define कैसे करें? तो basic simple question answer, the process of moving any vehicles on a track is known as a traction. ट्रैक्शन का मीनिंग हम बेसिक समझे तो क्या है? तो आपने व्हीकल चलाया होगा, एक्टिवा चलाया, पहले साइकिल चलाई थी, एक्टिवा चलाया, अभी कार चला रहे हैं, ओके। तो व्हीकल्स को हम स्पेसिफिक ट्रैक पर मोशन करवाए, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्शन. दैट मीन्स सिंपल क्वेश्चन दैट द प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल्स ऑन अ ट्रैक इज नोन एज अ ट्रैक्शन. In India, there are the various types of the traction system. Traction system means what? Moving the vehicles. So steam engine drive, diesel engine drive, petrol engine drive, battery electric drive, electrical drive, there are the so many various traction systems is here. These systems becomes classified in 2 ways. First one is a non-electrical traction system, second one is a electrical traction system. This one is detailed study in next. The history of the world railway. The first electrical locomotive was built by the Scotsman of 1837, powered by the batteries. तो फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव किसने बनाया था? स्कॉट्समैन ने 1837 में. कैसे पावर का यूटिलाइज किया था? बाय यूज ऑफ द बैटरीज. तो यहाँ मैंने नीचे यहाँ उसको फिगर प्लेस किया हुआ है. जो फर्स्ट प्लेस आप देख रहे हो फ्रंट ऑफ साइड, इट इज़ अ लोकोमोटिव एंड नाउ द बैटरी रूम एंड थर्ड वन इज अ कोचेस, ओके. एंड द इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन वॉज प्रेजेंट बाय द वेनर वॉन सीमेंस एट बर्लिन 1879. जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव बनाया था कब? 37 में, बट पैसेंजर के लिए कब चला? 1873 में, ओके. दिस इज द ओल्ड एज ट्रैक्शन सिस्टम. कि हॉर्स का हम यूटिलाइज कैसे करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो उसका ही यूटिलाइज हमने कैसे किया? उसको व्हीकल के साथ कनेक्ट किया. ये जो आप पीछे देख रहे हैं, तो वन टाइप ऑफ सिंपल बस, ओके. Now history of the Indian Railway. The Indian Railway is opened, right, or started 16 April 1853.
द फर्स्ट ट्रेन इज कंसिस्टिंग द वन ऑफ द स्टीम इंजन एंड 4 कोचेस, मुंबई टू थाने। हम जो हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ट्रेन अंग्रेज़ों ने कब चलाई थी, मुंबई टू थाने चलाई थी। एक स्टीम इंजन था, उसके पीछे 4 कोच थे। ओके, जो इंडियन रेलवे है उसका 150 मोर ईयर्स आर कंप्लीटेड फॉर सर्विंग अ नेशन। यू सी इन द स्क्रीन, इट इज़ अ इंडियन रेलवे मैप। ओके, जो पूरा यहाँ हम देख रहे हैं, ग्रीन लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने नोटिफाई किया हुआ है कि जो जितनी कलर की लाइन है वो यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी मीटर गेज है, सेम दैट द ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, नेशनलाइज लाइन है, इंटरनेशनल लाइंस है, सेम दैट द स्टेट टू स्टेट लाइन है, जोन वाइज लाइन है, तो वो यहाँ डिटेल में दिया हुआ है ना। स्पीड ऑफ द ट्रेन इन इंडिया, तो हमारे जो इंडिया है उसमें ट्रेन की स्पीड कैसी है, तो सबसे मैक्सिमम स्पीड जो अभी नई प्लेस हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस, मिनिमम 18 किलोमीटर पर आवर से लेके 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। देन आफ्टर घाटीमन एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर द शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, मेट्रो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये सभी जो ट्रेन है मैक्सिमम 130 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। और अभी रिसर्च चल रहा है कि हाउ टू इंक्रीज द 180 स्पीड टू द 230 स्पीड। द डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज इन अ ट्रैक्शन सिस्टम, तो ये जो टेक्नोलॉजीज है तो वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये जो सभी 1 to 6 में आप देख रहे हैं, एरो ट्रेन, TGV, मैगलेव, तो ये सभी जो ट्रेन है और उसकी टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली सभी जो टेक्नोलॉजी और जापान कंट्री ने बनाई है, और जापान ये ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है GTU एग्जामिनेशन रिलेटेड सिस्टम। फर्स्ट ये जो टॉपिक मैं चला रहा हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ द आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, ये GTU के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आएगा। तो बेसिक आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होगी ट्रैक्शन में, जैसे हम हमारा बाइक खरीदते हैं तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लाइक एज कि हमारा बजट क्या है, कौन सा मॉडल लेना है, कितनी स्पीड है, क्या एवरेज है, उसका मेंटेनेंस कैसे आता है, राइट। तो सेम दैट द ट्रेन के लिए, दैट मीन्स के लोकोमोटिव डिज़ाइन करने के लिए बेसिक आइडियल रिक्वायरमेंट है। तो ये टोटल 6 आइडियल रिक्वायरमेंट है। उसमें पहली रिक्वायरमेंट है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है, राइट, स्टार्टिंग फोर्स जो है, जैसे हम व्हीकल में को फर्स्ट गियर में चलाते हैं, राइट, तो फास्टली वर्क होना चाहिए। ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क। सेकंड दैट कॉम्पैक्ट इन साइज, जो हमारा साइज है लोकोमोटिव का, लोकोमोटिव दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ अ ट्रेन इंजन। ओके, तो कॉम्पैक्ट इन साइज, तो साइज हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कॉम्पैक्ट। क्यों कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन के लोकोमोटिव की साइज़ इंक्रीज़ होगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इंक्रीज़ होगी, देन आफ्टर द वेट उसका इंक्रीज़ होगा, राइट। देन आफ्टर ओवरलोड कैपेसिटी, ये हमारा इंडिया का सबसे मेन प्रॉब्लम, राइट, कि बसेस हो या हमारा इवन दैट कार हो, तो हम क्या करते हैं, एक कार होता है, फैमिली में 6 मेंबर होता है तो अभी चला जाता है, राइट। जैसे कि 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर में एज पर द कंपनी क्या होता है, ओनली द 2 पर्सन आर सीट, बट हमारे इंडिया में तो क्या होता है, मोर देन द 2 पर्सन्स आर सीटेड, राइट। सेम दैट आपकी जब आप कॉलेज आते हो तो फ्रेंड के साथ, तो भी आपको पता ही है, राइट। देन आफ्टर द मिनिमम मेंटेनेंस, जो हमारा लोकोमोटिव है उसका मिनिमम मेंटेनेंस होना चाहिए, राइट। तो मेंटेनेंस कम होगा तो सिमिलर दैट रनिंग कॉस्ट कम होगी। देन आफ्टर मिनिमम वियर एंड टीयर ऑन द इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, तो हमारा ये वियर और टीयर मिनिमम क्यों होना चाहिए, जो वियर और टीयर आर इंक्रीज दैट द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस इज इंक्रीज, रनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज, सो दैट द हमारा वियर टीयर फोर्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए। देन आफ्टर सबसे लास्ट और नॉट लिस्ट स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, जैसे हम AMTS में बैठते हैं तो जैसे ही बैठा है स्टैंड आए तो ऐसे ही सिर्फ खड़े रहने का, ऑटोमेटिकली आप आगे चले जाओगे, राइट। तो ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए,
Now another the 2 marks question in GTU examination, types of the traction system. तो कैसे आएगा एग्जाम में, what is a traction system, write down या state the types of traction system. The traction system are classified in the 2 ways. First one is a non-electrical traction system and second one is a electrical traction system. In the non-electrical traction system की definition क्या है, तो नाम ही बता देता है डेफिनेशन, राइट. तो नॉन इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स क्या, कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, राइट. कि जो हमको फोर्स प्रोडक्शन करना है तो वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे. तो डेफिनेशन क्या है, इन द नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट यूज एनी स्टेज फॉर द इट्स propulsion. In the short, in this means we are not use the electricity. तो नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के 2 सिस्टम है. फर्स्ट वन इज अ स्टीम इंजन ड्राइव एंड सेकंड वन इज अ आईसी इंजन ड्राइव. सेकंड वन इज अ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम. इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम मीन्स व्हाट, ऑपोजिट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम. दैट मीन्स व्हाट, कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ द फोर्स. जैसे कि आपने देखी होगी इलेक्ट्रिकल बस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, राइट. तो उसमें क्या हो रहा है, बैटरी का यूज़ कर रहा है, उसका हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मोटर में यूज़ कर रहे हैं और मोटर से फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और व्हीकल्स हमारा आगे जाता है. देन आफ्टर वी स्टार्ट द स्टीम इंजन ड्राइव. तो व्हाट इज़ अ स्टीम इंजन ड्राइव और वो कैसे फंक्शन यूज़ कर रहा है, तो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं थर्मल पावर स्टेशन, और विजिट भी किया है अपने थर्मल पावर स्टेशन का. तो थर्मल पावर स्टेशन मीन्स व्हाट, तो थर्मल पावर स्टेशन में क्या हो रहा है, स्टीम बॉयलर का हम यूटिलाइज कर रहे हैं. बॉयलर में हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म करते हैं. पानी को जैसे ही गर्म किया तो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्जेशन होता है. स्टीम को हम एक जगह इकट्ठी करते हैं, देन आफ्टर उसको फोर्सफुली टरबाइन में फ्लो करता है. जैसे ही टरबाइन में फ्लो करता है तो टरबाइन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जेशन होता है. ओके, उसके साथ हम जनरेटर कनेक्ट करते हैं, देन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सेम दैट हम यहाँ स्टीम इंजन में क्या है, मेनली कॉमन बॉयलर, पानी का हम क्या करेंगे, स्टीम में कन्वर्जेशन, और स्टीम का जैसे थर्मल पावर स्टेशन में क्या करते थे, टरबाइन पर फ्लो करते थे, हम क्या करेंगे, व्हील पर फॉर पिस्टन में फ्लो करेंगे. तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. वो मैकेनिकल एनर्जी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लोकोमोटिव के व्हील्स. तो सेम दैट यहाँ आप देख रहे हो कि जो स्टीम इंजन है वो सबसे फर्स्ट इंजन बना हुआ है. ओके, तो ये आपका सिस्टम है कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं. तो आप देख रहे हैं कि एक जगह इनलेट है स्टीम का, एक जगह आउटलेट है स्टीम का, राइट. तो हमारा जो पिस्टन्स है वो मूव हो रहा है, वो पिस्टन्स मूव हो रहा है, उसके साथ हमने व्हील्स के मैकेनिज्म कनेक्ट किए, राइट. तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. तो ये आपको इजीली पता चलेगा कि कैसे हमारा व्हील्स, एक ही व्हील्स हम कनेक्ट करते हैं, उसके साथ ये जो मैकेनिज्म कनेक्ट किया हुआ है व्हील्स का, तो ऑटोमेटिकली क्या है, एक व्हील पिस्टन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ आप देखिए. ओके, तो ऑटोमेटिकली ये सभी व्हील्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ओके, मैकेनिकल पावर. और ऐसे ही हमारी ट्रेन क्या आगे बढ़ती है. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वाटर का यूटिलाइज कर रहे हैं और कॉल का यूटिलाइज कर रहे हैं और हम मैकेनिकल फोर्स को क्रिएट करते हैं. नाउ द स्टीम इंजन ड्राइव हैज़ फॉलोइंग मेन फीचर्स. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द GTU एग्जामिनेशन फॉर द 3 मार्क्स. ओके, ऐसा एग्जाम में आता है, राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ द स्टीम इंजन ड्राइव. ओके, तो आपको टोटल 16 दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम 8 to 10 आपको लिखना है. तो मेन फीचर्स क्या है, तो फर्स्ट क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन. ये जो स्टीम इंजन का कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है. क्यों, ओनली फॉर द बॉयलर्स यूटिलाइज हो रहा है. ओके, देन आफ्टर क्या है, कनेक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड ड्राइव्स ऑन अ व्हील, वो भी क्या है, सिंपल. वेरी स्मूथ स्पीड कंट्रोल. स्पीड कंट्रोल में कैसे करना है, सिर्फ स्टीम का फ्लो क्या करना है, कट ऑफ करना है. जैसे ही हम स्टीम का फ्लो कट ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हील्स की मैकेनिकल पावर क्या होगी, कट ऑफ. देन आफ्टर स्पीड इज इजीली कंट्रोल. देन आफ्टर मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस सिंपल है.
बट टाइम क्या लगता है 8 to 12 आवर्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बॉयलर का यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो बॉयलर में से कहाँ स्मोक निकलता है, तो वो स्मोक से हमारा जो इंजन है, राइट, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाता है, राइट। तो पहले मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको वॉश करना पड़ेगा। जैसे हम कार को मेंटेनेंस के लिए बेचते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहले वॉशिंग करते हैं, राइट। तो सेम दैट सेकंड क्या है कि एफिशिएंसी 8 to 10% है सिर्फ, ये हमारा डिसएडवांटेजेस है। ये जो अंडरग्राउंड सिस्टम है हमारा रेलवे का, उसमें ये सिस्टम यूटिलाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ सो मेनी टोटल 16 दिया हुआ है, राइट। देन आफ्टर क्लीनिंग हमको करना है, राइट, बॉयलर को, तो ऐश और गैसेस हमको निकालना है, राइट। तो ये जो सिस्टम है स्टीम इंजन का, राइट, वो दो ऑपरेशनल डिपेंडेबिलिटी पर डिपेंड है। फर्स्ट वन इज़ द फ्यूल एंड सेकेंड वन इज़ द वाटर। ये दोनों में से कोई ना हो तो ट्रेन आगे चलेगी नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टीम इंजन में हिली एरिया में आपने स्टीम ट्रेन देखी होगी, तो इंजन के पीछे क्या होता है, कॉल स्टोरेज प्लांट। तो वहाँ क्या होता है, कॉल को हम स्टोर करते हैं। ओवरलोड कैपेसिटी उसकी लेस है क्योंकि एफिशिएंसी हमारी लेस है, राइट। स्मोक जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, पॉल्यूशन होता है, उसके हिसाब से हमारा जो स्टील का स्ट्रक्चर है, राइट, इंजन का और कोच का, उसमें कोरोजन इफेक्ट आती है, ओके। मेंटेनेंस और रिपेयर्स रेट जो है वो हाई है क्योंकि हर रोज़ एक बार ट्रेन कंप्लीट करके आए, राइट, रन, तो उसको मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है, ओके। तो ये जो बेसिक फीचर्स, तो ये जो आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हो कि ये मेंटेनेंस चल रहा है, तो फर्स्ट जैसे ही ट्रेन आती है तो उसको पहले वॉश किया जाता है। सेकंड आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, जैसे ही ये जो पूरा आप देख रहे हो इंजन, राइट, तो उसमें जैसे ही बॉयलर कॉल को बंद करेगा तो सेम दैट द इतना पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। और आप थर्ड और फोर्थ फिगर देख रहे हो, वो रिसेंटली न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करके प्लेस किया हुआ है जो मिनिमम पॉल्यूशन करे, राइट। तो ये न्यू मॉडल्स स्टीम इंजन के दिए हुए हैं। और यहाँ जेटीयू के लिए एक मोस्ट टाइम इक्वेशन, राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ द स्टीम इंजन। नाउ द आईसी इंजन। तो व्हाट इज द आईसी इंजन? तो आपने ये आईसी इंजन तो देखा होगा, ओके। आप टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, तो ये आईसी इंजन यहाँ यूज़ होता है, ओके। इंटरनल कंबर्सन इंजन, आईसी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इंटरनल कंबर्सन इंजन। ये जो सिस्टम है वो मोस्टली ट्रक, बाइक, बस और कार में यूटिलाइज होती है। ये जो सिस्टम है वो ट्रेन के लिए यूटिलाइज नहीं है क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिससेटिस्फैक्टरी है। एफिशिएंसी इंक्रीज है कंपेयर टू द स्टीम इंजन, ओके। लोअर स्पीड पे अब चलाओगे बहुत तो ये अनइकोनॉमिकल सिस्टम है। और जो स्पीड कंट्रोल करना है तो यहाँ आपको गियर बॉक्स प्लेस करना है। तो आपने देखा होगा कि आपके बाइक में, स्कूटर में या आपकी कार में गियर सिस्टम है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो ये हम करते हैं। तो ये इंटरनल कंबर्जन इंजन का वर्किंग सिस्टम है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये स्पार्क प्लग है, राइट। ये जो सिस्टम यहाँ से आ रहा है, पेट्रोल टैंक से पेट्रोल आ रहा है, यहाँ से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, ओके। ये दोनों का कंबर्जन होता है। जैसे ही कंबर्जन होता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फोर्स क्रिएट होता है। तो ये जो नीचे आप देख रहे हो, ओके, तो ये जो क्या है, पिस्टन है और उसके साथ ये सिलेंडर है। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो नीचे हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, ओके। ये स्मोक धीरे से बाहर निकल रहा है। ये तो सिंपल है। और सेम दैट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन। तो एडवांटेजेस क्या है, इनिशियल कॉस्ट लेस है, इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल इजी है, ब्रेकिंग सिस्टम इजी है, ओके। एफिशिएंसी हायर है। बट डिसएडवांटेजेस आप देखिए कि ओवरलोड कैपेसिटी है जो वो कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ओके। वहाँ जो इक्विपमेंट यूटिलाइज हो रहा है वो भी, उसकी लाइफ जो है वेरी लेस है। ऑपरेशन अनइकोनॉमिकल है। हम देखते हैं कि जब हम गियर चेंज करते हैं,
राइट, एक्सेलरेटर का यूटिलाइज कर रहा है, राइट। तो ये सिस्टम पेट्रोल या डीजल सबसे ज़्यादा खाता है, सेम दैट इट्स अनइकोनॉमिकल। और जो गियर सिस्टम के हिसाब से हमारी ट्रेन में ये सिस्टम नहीं चलती। तो ये 2 या 3 मार्क्स में जीटीयू में आ जा सकता है कि स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन। नाउ कंक्लूज ऑफ दिस लेक्चर कि हमने आज क्या पढ़ा। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रैक्शन सिस्टम, सेकेंड वन इज़ द हिस्ट्री ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम, इंडियन रेलवेज क्या है, टाइप्स ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम, नॉन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम, और 2 पॉइंट हमने आज ट्रैक्शन सिस्टम के पढ़े। फर्स्ट वन इज़ अ स्टीम इंजन एंड सेकेंड वन इज़ अ आईसी इंजन। ओके, तो हम आज हमने जो चलाया वो एग्ज़ाम के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ट्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज़ अ main features of the steam engine, and third one is the advantages and disadvantages of IC engine. अब next lecture हम कौन सा point consider करेंगे, study of the electrical traction system. Thank you very much students.